Okay, now today in this lecture we'll study complementary metal oxide semiconductor, that is your CMOS. What basically this CMOS is, it has both NMOS and PMOS on a single chip or on a single substrate. Okay, now NMOS and PMOS, the working of NMOS and PMOS, they are complementary to each other. For the voltages wherein your PMOS it is on, it is short, your NMOS it will remain as an open circuit or it will remain off. Okay, and vice versa, wherever your NMOS is on, your PMOS will be off. That is why it is called as complementary metal oxide semiconductor or CMOS. Okay, that is the reason why complementary term is used. Okay, here now if you look at the diagram of a CMOS, you will see that there is an NMOS and there is a PMOS which are side by side. How this CMOS is fabricated on a single chip, we start with, say we are starting with the P substrate. On this P substrate we fabricate our NMOS. This is our NMOS, यहाँ पर जहाँ पर मैंने टिक मारा हुआ है. ओके, इट इज़ सिंपल. सिंपली हमने सोर्स और ड्रेन के दो एन टाइप हेवली डोप्ड एन टाइप रीजन्स जो हैं वो हमने इसमें डोप किए हुए हैं एंड that forms your NMOS. But PMOS जो है, PMOS is not formed in a P substrate, it is formed in an N substrate. तो सबसे पहले we are doping this region जिसको हम लोग N type से डोप करते हैं और इसको हम लोग N well बोलते हैं, N well. ओके, ठीक. सिमिलरली हमारे पास P well भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने इस डायग्राम में क्या लिया हुआ है, एनवेल लिया हुआ है. एनवेल हमारा कौन सा रीजन है, एनवेल हमारा ये वाला रीजन है. इसमें हम क्या अपना फैब्रिकेट करते हैं, फिर अपना पीमॉस. कैसे पीमॉस फैब्रिकेट करते हैं, इस एन टाइप रीजन में हम लोग पी पॉजिटिव हेवी डोप पी टाइप मटेरियल लेते हैं एज आर सोर्स एंड एज आर ड्रेन. ओके, सो that is how NMOS and PMOS they are fabricated side by side. ठीक, फिर what you can see from the diagram is that okay, now you know that NMOS में अभी हमने जब डिफरेंस किया था, डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन NMOS एंड PMOS इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने देखा था कि NMOS जो होता है उसके लिए आपका VDS क्या होता है, पॉजिटिव. तो योर ड्रेन इट इज़ एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू योर सोर्स. सो दैट इज़ वाई सोर्स ओवर हियर इट इज़ ग्राउंडेड. ओके, एंड ड्रेन इट इज़ केप्ट एज एट अ हायर पोटेंशियल. फाइन. अच्छा, and for PMOS it is the reverse. Okay, your source is at higher potential with respect to your drain. So यहाँ पर जो हमने source है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, VDD के साथ. VDD is your positive potential, say it is 5 volt. Okay, अच्छा. Now how do we give the input and how do we take the output? जो हमारा input है, two gates, that is gate of NMOS and gate of PMOS, they are shorted. तो ये है आपका गेट जो हमने शॉर्ट किए और इस पर हम लोग क्या अपना दे रहे हैं, वी इन. तो वी इन जो है वो हम लोग कहाँ पर देते हैं, हम लोग एक कॉमन पोटेंशियल बनाते हैं दो गेट्स का. टू गेट्स दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द इनपुट टर्मिनल. और जो दो ड्रेन्स हैं, किसके दो ड्रेन्स, हमारे PMOS और NMOS के, हेयर दिस ड्रेन एंड दिस ड्रेन, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म वी आउट. वहाँ पर हम अपना क्या लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज हम लोग दो ड्रेन्स को कनेक्ट करके ऑब्जर्व करते हैं. ओके, सो अ लिटिल बिट आई हैव रिटन ओवर हेयर कि हम लोग दो गेट्स को कनेक्ट करते हैं, तब जाकर हम लोग इनपुट देते हैं, और दो ड्रेन्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उससे हम लोग अपना आउटपुट टर्मिनल बनाते हैं. NMOS में क्या है, आपका ड्रेन एट हायर पोटेंशियल है और आपका सोर्स एट लो पोटेंशियल है. PMOS में उसका उल्टा है, ड्रेन एट लो पोटेंशियल है एंड सोर्स जो है वो एट हाई पोटेंशियल है. ओके, फाइन. नाउ हेयर वी आर studying CMOS as an inverter. CMOS जो है, we say that CMOS works as an inverter. What does an inverter mean? Inverter means कि अगर हम लोग इसको हाई वोल्टेज इनपुट पे देते हैं, आउटपुट पे मेरे को लो मिलेगी. अगर मैं इसको लो वोल्टेज एट इनपुट दूंगी, आउटपुट पे मुझे हाई मिलना चाहिए. So now we'll see how CMOS it works as an
inverter. This is the circuit. These are my two gates which are joined together. You can see here and here I have joined my two gates to form the input terminal. Okay, now this here is your PMOS. The first one here is your PMOS as is evident from the bubble over here. Okay, अच्छा PMOS का आपका जो सोर्स है वो किस पोटेंशियल पे होना चाहिए, वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए. अच्छा ये जी दो ड्रेन्स हैं यहाँ पर, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द आउटपुट पोटेंशियल. एंड जो आपका NMOS है उसका जो सोर्स है वो किस में होना चाहिए, लो पोटेंशियल पे होना चाहिए. दैट इज़ वाई इट इज़ ग्राउंडेड. सो यू कैन अगेन हैव अ लुक एट द डायग्राम एंड यू कैन सी हाउ द सर्किट ऑफ अ CMOS looks like. Okay, now there are some prerequisites of this circuit. जो हमारा VTH है for NMOS वो हमने बोला है जी 1 वोल्ट है, और जो हमारा VTHP है for PMOS वो हमारा -1 वोल्ट है. बिकॉज यू नो कि NMOS के लिए हमें पॉजिटिव VGS देना है और PMOS के लिए हमें नेगेटिव VGS देना है. ठीक है, पॉजिटिव VGS हम लोग क्यों NMOS में देते हैं, सो दैट पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगी इंटरफेस पे और वो अट्रैक्ट करेगी आपके इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हमें वहाँ पे N चैनल बनानी है. PMOS में हम लोग नेगेटिव VGS क्यों देते हैं, क्योंकि नेगेटिव गेट पे अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अपना गेट पे देंगे तो हमारे इंटरफेस पे भी एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और वो होल्स को क्या करेगा, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और वहाँ पर एक P चैनल बन जाएगी. दैट इज़ वाई आई एम अगेन रिपीटिंग VTH जो NMOS के लिए है इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन जो PMOS के लिए है इट इज़ नेगेटिव. ओके, यहाँ पर हमने अज्यूम किए हैं कि जो उसके वैल्यूज़ है वो से इट इज़ +1 एंड -1 respectively for NMOS and PMOS. Now VDD हमने कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है, और we can say that it is at a high logic, say at logic 1. okay, अच्छा यू नो दैट VGS1 जो है वो PMOS के लिए है. आपका फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर आपका PMOS है और आपका सेकेंड ट्रांजिस्टर आपका NMOS है. तो VGS1 जो हो गया वो क्या हुआ, VG माइनस VS1, और आपका VGS2 जो हो गया वो हो गया VG माइनस VS2. PMOS के लिए हम लोग VS1 बोल रहे हैं और NMOS के लिए हम लोग VS2 बोल रहे हैं. फाइन. Now these were some prerequisites of the circuit कि इस सर्किट में हम लोगों ने क्या क्या अज्यूम किया हुआ है. Now let me say that my Vin is 0. मैंने अपने Vin पे क्या दी है, एक लो वोल्टेज दी है, 0 दिया है, लॉजिक 0 दिया है मैंने वहाँ पर. ठीक है, तो what happens to PMOS, क्या PMOS उस वक्त ऑन है या उस वक्त PMOS ऑफ है. आप सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं VGS1 किसके बराबर होगा, VG माइनस VS1. PMOS का VS किस पे लगा हुआ है, वो VDD पे लगा हुआ है. ठीक है, हमने VDD को कितना लिया है, 5 वोल्ट हमने उसको अज्यूम किया है. ठीक, ओके. और VG इनपुट मैं किस पे दे रही हूँ, गेट पे दे रही हूँ, तो मतलब VG फॉर PMOS क्या होगा, Vin. तो VG माइनस VS1 किसके बराबर हो गया, -5 वोल्ट के बराबर. और आपको पता है कि PMOS कब ऑन होता है, जब उसका VGS क्या होना चाहिए, लेस दैन इट्स VTHP. तो क्या -5 है लेस दैन -1, इसका VTHP कितना है, -1. तो क्या -5 है लेस दैन -1, यस -5 इज़ लेस दैन -1. तो PMOS इस वक्त क्या है, ऑन है. ठीक है, बट NMOS को क्या हो जाता है जब हम NMOS को 0 देते हैं. NMOS के लिए भी हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे. VGS2 किसके बराबर होगा, VG माइनस VS2. VG हमने क्या दिया है, वो हमारा इनपुट है जो हमारा 0 है, और VS2 कहाँ पे है हमारा सोर्स, इट इज़ एट 0. तो VGS2 किसके बराबर है, 0. लेकिन NMOS कब ऑन होता है, NMOS तब ऑन होता है जब हमारा VGS क्या होता है, ग्रेटर दैन VTH. क्या 0 है ग्रेटर दैन VTH फॉर NMOS. NMOS के लिए VTH कितना है, NMOS के लिए VTH 1 है. इज़ 0 ग्रेटर दैन 1, नो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1. तो NMOS क्या हो जाएगा, NMOS आपको ऑफ हो जाएगा. तो इस केस 1 में आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया अगर मैंने यहाँ पर 0 दिया, मेरा PMOS क्या होगा, मेरा PMOS ऑन होगा और मेरा NMOS क्या होगा, ऑफ होगा. तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. ओके, तो आपका सर्किट कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आपका PMOS आपका ऑन है, इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट, और आपका NMOS क्या है, वो आपका ओपन सर्किट बन जाएगा, ऑफ हो जाएगा. ठीक है,
ओके, व्हेन आई से दैट PMOS एक्ट्स एज अ शॉर्ट, क्या ये VDD पहुंच जाएगा आपके आउटपुट पे? यस, आपका आउटपुट किसके साथ शॉर्ट हो जाएगा? आपका आउटपुट VDD के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो आपके आउटपुट पे आपको क्या वोल्टेज मिलेगी? VDD। मतलब क्या है? मतलब है जब मैंने 0 दिया मेरे को आउटपुट पे क्या मिला? 1 मिला। तो इज़ दिस इन्वर्टिंग ऑपरेशन? यस, इट इज़ इन्वर्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा PMOS ऑन हो गया, मेरा NMOS ऑफ हो गया। PMOS जब ऑन हो गया उसने एक्ट किया एज अ शॉर्ट, तो पूरी की पूरी वोल्टेज शॉर्ट में क्या हो जाएगा? आउटपुट विल बी शॉर्टेड टू VDD। आपके आउटपुट पे वही वोल्टेज होगी जो यहाँ ऊपर लगी हुई है। तो आपके आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगा? वैल्यू विल बी VDD, विच आई सेड अर्लियर कि वो +5 वोल्ट है या फिर वो लॉजिक 1 है। ठीक है, नाउ इफ़ यू लुक एट केस 2 में हमने क्या दिया है? मैंने V इन पे 5 वोल्ट दिया है या फिर लॉजिक 1 दिया है। ठीक है, तो उस वक्त आपका VGS1 किसके बराबर होगा? लुक एट दिस सर्किट। ठीक है, दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 2। VGS1 किसके बराबर होगा? VG माइनस VS1। VG पे आपने क्या दिया हुआ है? 0, और यहाँ पर क्या है आपका? Sorry, what have I given at the input? Wait. In my case 2, yes, I am giving 1. Okay, तो VGS क्या बन जाएगा आपका? VGS1 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 1 है, और यहाँ पर आपका दिस इज़ योर ट्रांजिस्टर 1 एंड दिस इज़ योर ट्रांजिस्टर 2। VGS1 क्या बन जाएगा? VG पे आपका क्या है? 1 माइनस VS1 पे आपका क्या लगा हुआ है? VDD। दैट इज़ 1 माइनस VDD इज़ ऑल्सो एट लॉजिक 1 माइनस 1, तो इट विल बी 0. ओके, here it will be 0, but is 0 less than -1? No, it is not less than -1. तो आपका PMOS क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने NMOS को देखेंगे, NMOS में आपका VGS2 किसके बराबर होगा? VG माइनस VS2। VG कहाँ है आपका? VG आपका 1 पे है, और VS2 आपका किस पे है? वो आपका 0 पे है। तो what is 1 minus 0? और 5 minus 0, 5 is the voltage, it is 5. It is 5 minus 0 is 5. Okay, तो क्या VGS2 is greater than VTH? Is 5 greater than 1? Yes, it is greater than 1, so NMOS will be on. ठीक है, तो आपका सर्किट कैसा लगेगा? आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। आपका PMOS ऑफ होगा, आपका NMOS क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका आउटपुट किस चीज़ के साथ शॉर्ट हो जाएगा? इट विल बी शॉर्टेड टू द ग्राउंड। ग्राउंड का वोल्टेज क्या है? 0। तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? वैल्यू 0। इनपुट पे क्या वैल्यू था? 1। तो जब हमने 1 दिया मेरे आउटपुट पे, जब मैंने 1 इनपुट पे दिया मेरे आउटपुट पे क्या आया? 0 आया। सो दिस इज़ हाउ आई से कि जब मेरा इनपुट 0 था तब मेरे आउटपुट पे 1 आया, और जब मेरा इनपुट 1 था मेरे आउटपुट पे क्या आया? 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, लेट्स से ये वाला केस है जब इनपुट मेरा 0 था, जब इनपुट मेरा 0 था मेरा PMOS ऑन हो गया और मेरा NMOS क्या था? वो ऑफ हो गया। और जब मेरा इनपुट 1 था तो मेरा NMOS ऑन हो गया और मेरा PMOS क्या हो गया? ऑफ हो गया। मतलब दे आर वर्किंग opposite to one another. That is why this is called as complementary CMOS. Okay, so I hope that you could understand this lecture wherein we saw what a complementary MOSFET is and how it works as an inverter.